Welcome to part 5 or finally the final part of बैंक ऑडिट। तो चलो शुरू करते हैं और जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं फटाफट से। एंड देन सुपर सून एक वेरी शॉर्ट वन शॉट रिविजन वीडियो ऑफ बैंक ऑडिट भी मैं बना दूंगी फॉर लास्ट रिविजन। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लेना यार। तो चलो शुरू करती हूँ। ये सब बाद में बताऊंगी। आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम इंट्रो में ही। सो शुरू करते हैं। अब इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस। तो ऑडिटर को जो है ना एग्जामिन करना चाहिए एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांस डिटरमाइन करने के लिए एनटीई ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है। सो द ऑडिटर शुड एग्जामिन efficacy of internal various internal controls over advances to determine the NT of substantive audit procedure, the NT substantive audit procedure का। और in general internal control over advances should include internal control over advance क्या include करता है वो पढ़ते हैं चलो। तो बैंक को है ना एडवांस तभी करना चाहिए जब वो खुद को सेटिस्फाई कर ले अपनी क्रेडिट वर्दिनेस को लेके, बोरोवर की। और ऑब्टेन कर आफ्टर ऑब्टेनिंग सैंक्शन फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ऑफ द बैंक। तो बैंक शुड मेक इन एडवांस ओनली आफ्टर मेकिंग इट सेटिस्फाई sorry only after satisfying itself as to the creditworthiness of the borrower and after obtaining sanction from the appropriate authorities of the bank. So a bank should make an advance only after satisfying itself as to the creditworthiness of the borrower and after obtaining sanction from the appropriate authorities of the bank. Bank should make an advance only after satisfying itself as to the creditworthiness of borrower and after obtaining sanction from the appropriate authorities of the bank। और उसको सारे necessary documents जो है जैसे कि agreement, demand promissory note, letters of hypothecation वो भी execute करवा लेनी चाहिए by the parties before advances are made। So all necessary document example agreements, demand promissory note, letter of hypothecation etc should be executed by the parties before advances are made। The compliance with the terms of section and end use of funds should be ensured। Compliance terms of section के साथ and end use of funds ensure हो जाना चाहिए। So 3 पॉइंट हो गए हमारे। पहला पॉइंट है कि बैंक को जो है एडवांस देने से पहले खुद को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए क्रेडिट वर्दीनेस बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस को लेके और ऑब्टेन कर लेना चाहिए सैंक्शन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ऑफ द बैंक। ऑल्सो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करवा लेनी चाहिए बाय द पार्टीज बिफोर मेकिंग एन एडवांस। सो ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एग्जाम्पल agreements, demand promissory notes, letters of hypothecation etc should be executed by the parties before advances are made। और compliance करना चाहिए terms of section के साथ। compliance with terms of section and end use of funds should be ensured। Now sufficient margin as specified in the sanction letter should be kept against security। जो sanction letter में specify की गई है sufficient margin वो हमें रखनी है against securities so as to cover for any decline in value thereof, ताकि आगे जाके अगर कोई भी वैल्यू गिर जाती है सिक्योरिटी की तो हमको कोई लॉस ना हो जाए। सो the availability of sufficient margin needs to be ensured at regular intervals पे availability of sufficient margin जो है हमको रखनी है। So sufficient margin as specified in the sanction letter should be kept against securities taken so as to cover for any decline in the value thereof, and the availability of sufficient margin needs to be ensured at regular intervals। देन ये क्या बोलता है, इफ द सिक्योरिटी जो है नेचर ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स के केस में अगर जो सिक्योरिटी है वो शेयर्स या डिबेंचर्स के फॉर्म में है, नेचर में है, तो जो ओनरशिप है ना वो ट्रांसफर होगी इन द नेम ऑफ बैंक। तो उसकी शेयर और डिबेंचर की ओनरशिप जो है बैंक के नेम में ट्रांसफर हो जानी चाहिए एंड उस इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सच सिक्योरिटीज बी रिटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ओके। फिर क्या बोलता है, जो सिक्योरिटीज जिनका रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है वो रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए इन द नेम ऑफ बैंक और अदरवाइज एक्कम्पनीड बाय डॉक्यूमेंट सफिशिएंट टू गिव टाइटल टू द बैंक। या तो बैंक के नेम में रजिस्टर हो जानी चाहिए या फिर कोई उसको ऐसा डॉक्यूमेंट मतलब उसको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए जो बैंक को टाइटल देता हो। ठीक है।
मतलब बेसिकली वो बैंक की उसमें हो जाए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट क्या बोलते हैं कि सफिशिएंट मार्जिन एज़ स्पेसिफाइड इन द सैंक्शन लेटर शुड बी केप्ट अगेंस्ट सिक्योरिटीज टेकन सो एज़ टू कवर फॉर एनी डिक्लाइन इन द वैल्यू देयरऑफ एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट मार्जिन नीड्स टू बी इंश्योर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। और अगर सिक्योरिटीज जो है आर टेकन इन द नेचर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ownership of the same should be transferred in the name of the bank and the effective control of such securities be retained as part of documentation. All securities requiring registration should be registered in the name of the bank or otherwise accompanied by documents sufficient to give title to the bank. तो पहले 3 पॉइंट में ये कहता था कि जो बैंक को है ना खुद को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए एडवांस देने से पहले रिगार्डिंग द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द बोरोवर। ठीक है, क्रेडिट बोरोवर की क्रेडिट वर्दिनेस को लेके और क्या था, एक सेकेंड गाइस मैं भूल जाती हूँ पता नहीं क्यों। क्रेडिट वर्दिनेस को लेके और हाँ, सैंक्शन भी ऑब्टेन करने लेना चाहिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से बैंक की। सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो एग्जीक्यूट होने चाहिए बाय द पार्टीज बिफोर एडवांसेस आर मेड, और वो डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट्स डिमांड प्रोमिसरी नोट लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन कंप्लाइंस हो जाना चाहिए विद टर्म्स ऑफ सेक्शन एंड एंड यूज ऑफ फंड्स शुड बी इंश्योर्ड। सफिशिएंट मार्जिन रखनी है जो सेक्शन लेटर में स्पेसिफाइड है अगेंस्ट सिक्योरिटी, ताकि डिक्लाइन जो है वो कवर कर सके। और हमें रेगुलर इंटरवल्स पे सफिशिएंट मार्जिन की अवेलेबिलिटी हमको चेक करनी है। और सिक्योरिटीज अगर नेचर और शेयर्स के तो ओनरशिप जो है ट्रांसफर हो जानी चाहिए, या फिर और एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सच सिक्योरिटीज शुड बी रिटेन। एंड सिक्योरिटीज जिनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है वो रजिस्टर्ड हो गई है नेम ऑफ बैंक में, या फिर अदरवाइज एम्पलीड बाय द डॉक्यूमेंट सफिशिएंट टू गिव टाइटल टू दी बैंक। 6 पॉइंट्स हो गए अब हमारे। और अब और पॉइंट्स पढ़ती हूँ। इन केस ऑफ गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बैंक, अगर गुड्स जो है इन द पोजेशन ऑफ द बैंक है तो कंटेंट्स ऑफ द पैकेजेस शुड बी टेस्ट चेक्ड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट। द गोडाउन शुड बी फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्टेड बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ऑफ द ब्रांच कंसर्न इन एडिशन टू द इंस्पेक्टर्स ऑफ द बैंक। सो इन केस अगर जिस केस में गुड्स का जो पोजेशन है ना बैंक के पास, तो पहले तो हमको टेस्ट चेक करना है कि कंटेंट ऑफ पैकेजेस टेस्ट चेक करने हैं रिसिप्ट के टाइम पे। फिर जो गोडाउन्स हैं हम उसको रेगुलरली फ्रीक्वेंटली मतलब इंस्पेक्ट करेंगे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स जो भी बैंक है उसके। और या फिर इंस्पेक्टर ऑफ द बैंक, मतलब हमको रेगुलर फ्रीक्वेंटली जो है इंस्पेक्ट करना है कि गुड्स भाई सही कंडीशन में है या नहीं, वैसा करके। सो इन द केस ऑफ गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बैंक, कंटेंट्स ऑफ द packages should be test checked at the time of receipt and the godown should be frequently inspected by responsible officers of the branch concerned and in addition to the inspectors of the bank। फिर जो ड्राइंग पावर रजिस्टर है वो अपडेट करना है हर महीने रिकॉर्ड करने के लिए वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हाइपोथेकेटली, और ये एंट्रीज जो है चेक्ड होनी चाहिए बाय एन ऑफिसर। So, drawing power register should be updated every month. Drawing power register should be updated every month to record the value of securities hypothecated, and then these entries should be checked by an officer. The entry जो है एक ऑफिसर के द्वारा चेक हो जानी चाहिए। अब जो अकाउंट्स है ना वो कैप्ट होने चाहिए बोथ विद इन बोथ द ड्राइंग पावर एंड द सेक्शन लिमिट। तो ये 3 पॉइंट्स क्या बोलते हैं कि इन केस ऑफ गुड्स इन द पोजेशन, कंटेंट्स ऑफ द पैकेजेस शुड बी टेस्टेड एट द टाइम ऑफ रिसीव। फिर गोडाउन्स जो है फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट होने चाहिए बाय रिस्पांसिबल ऑफ द ब्रांच कंसर्न एंड एडिशन टू इंस्पेक्टर्स ऑफ द बैंक। ड्राइंग पावर रजिस्टर को हमको अपडेट करना है एवरी मंथ टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हाइपोथेकेटेड। दीज एंट्री शुड बी चेक बाय एन ऑफिसर। अकाउंट जो है कैप्ट होने चाहिए विद इन बोथ द ड्राइंग पावर एंड द सेक्शन लिमिट। 9 पॉइंट्स हो गए और 2 पॉइंट्स और बाकी, 11 पॉइंट्स है टोटल इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस पे। फिर जो ऑल द अकाउंट है ना जो एक्सीड कर रहे हैं सेक्शन लिमिट को या ड्राइंग पावर को, या फिर अदरवाइज इरेगुलर है, वो ब्रॉट होना चाहिए। ये हमने पढ़ा ही है पहले भी हेड ऑफिस या मैनेजमेंट की। brought to the notice of the controlling authority regularity, or the operation of each advance account should be reviewed at least once a year or at frequent intervals in case of large advances। ईच एडवांस अकाउंट जो है हमको रिव्यू करना है एक बार तो साल में एटलीस्ट, या फिर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे अगर कोई लार्ज एडवांस है तो द ऑपरेशन ऑफ ईच एडवांस शुड be reviewed at least once a year at more frequent intervals in case of large banks। Okay, so पहले हमको बोला था क्रेडिट वर्दिनेस और सैंक्शन की अथॉरिटी लेनी है, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स जो एग्जीक्यूटेड होना चाहिए, फिर कंप्लाइंस विद एंड यूज ऑफ फंड्स एंड टर्म्स ऑफ सेक्शन। देन उसके बाद बोला था कि क्या करना है, पहला 3 था ना ये, फिर उसके बाद चेक करना पड़ेगा, भूल गई।
हाँ, सफिशिएंट मार्जिन रखनी है ताकि डिक्लाइन से बचे हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। फिर नेचर ऑफ सिक्योरिटी में है तो ट्रांसफर होना चाहिए। फिर रजिस्ट्रेशन, देन ड्राइंग पावर को, रजिस्टर को हर महीने अपडेट करना है। पोजीशन में गोडाउन इंस्पेक्ट, फिर ड्राइंग पावर, फिर ब्रॉट टू द नोटिस और रेगुलर मंथ। ठीक है। क्या बोला है इसने इसमें? ड्राइंग पावर कंप्यूटेड बाय सीएपी फॉर, ये टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है ना। CAP is conducting stock audit of a borrower link cash credit and relax from cash audits against security of paid stock and data of nine margins separate 25% for stock and 40% for datas. वैल्यू ऑफ स्टॉक 25 लाख है ना, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक में पहले हमको ये डैमेज वाला हटाना है, फिर क्रेडिटर वाला हटाना है। तो मैं अभी बताती हूँ। 125 -5 माइनस फिर 50 ना, हाँ। फिर माइनस करेंगे 25%, तो 52.5 आ जाएगा। और फिर 52.5, उसके बाद डेटा की वैल्यू में ये माइनस कर दिया ना। 50 -10 इन एलिजिबल डेटा देना, -40% प्लस 52.5। 100 माइनस 60। Now moving to the next topic, that is audit of revenue items, revenue items का audit और P&L items। फॉर्म बी में, जैसे कि हमने पढ़ा ही था, फॉर्म बी ऑफ शेड्यूल 3, फॉर्म बी ऑफ थर्ड शेड्यूल। ये P&L दे रखा है। नाउ इनकम, फॉलोइंग आइटम्स जो है इनकम के अंदर आते हैं, एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एडवांस डिस्काउंट ऑफ बिल्स, इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, RBI बैलेंसेस इंटर फंड्स। और अदर इनकम में कमीशन, एक्सचेंज ब्रोकरेज, कमीशन ऑन बिल्स फॉर एक्सचेंज, कमीशन एक्सचेंज रेमिटेंसेज, ड्राफ्ट, कमीशन लेटर्स ऑफ क्रेडिट, गारंटीज, लोन प्रोसेसिंग, मोबाइल बैंकिंग फीस, क्रेडिट डेबिट, रेंट और कमीशन, कमीशन ब्रोकरेज फी, कमीशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस रिवलेशन, प्रॉफिट लेना लैंड। Now audit approach and procedures. ऑडिटर का कंसर्न इन कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ इनकम। ऑडिट ऑफ इनकम जब हम करते हैं तो ऑडिटर को प्राइमरीली जो है ना कंसर्न है विद ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट रिकॉर्डेड इनकम अरोज फ्रॉम ट्रांजैक्शन व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेवेन्यू पीरियड एंड पर्टेन टू द बैंक। पहली बात तो इनकम के केस में ना हम ऑडिटर को क्या चेक रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि भाई जो इनकम इन्होंने रिकॉर्ड की है ना, वो ट्रांजैक्शंस हुए भी हैं और वो उसी साल के हैं। मतलब जिस पीरियड का हम ऑडिट कर रहे हैं उसी पीरियड के, कोई पहले के तो नहीं है या फिर आलतू फालतू नहीं ऐड कर दिए, और बैंक के है किसी और के तो नहीं ऐड करे हुए, ये देखना है। कोई अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं होनी चाहिए और इनकम जो है रिकॉर्डेड होनी चाहिए अप्रोप्रिएट अमाउंट, मतलब सही अमाउंट पे भी तो रिकॉर्ड करो भाई, ऐसी वैसी अमाउंट पे थोड़ा रिकॉर्ड कर देंगे। सो in carrying out audit of income, the auditor is primarily concerned with obtaining reasonable assurance that recorded income arose from transactions took place during the relevant period and pertains to the bank and is recorded an appropriate amount. Recorded income की existence current period की है, कट ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड का ही है वो, और राइट बैंक का ही है, उसकी वैल्यूएशन।
आर आरबीआई की डायरेक्शन, आरबीआई ने एडवाइस किया है दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम विच एक्सीड्स 1% ऑफ द टोटल इनकम, 1% ऑफ टोटल इनकम of the bank on gross basis, or 1% of the net profit before taxes if the income is reckoned net of cost, should be considered accrual as per accounting standard 9. accrual accrual basis पे, ठीक है, 1% ऑफ इनकम, टोटल इनकम एक्सीड करती है, जो भी इनकम जो है बैंक की टोटल इनकम से ये एक्सीड करती है 1%, उसको अक्रूवल बेसिस पे AS9 के हिसाब से। मटेरियलिटी, इफ एनी आइटम ऑफ इनकम इज नॉट कंसिडर्ड टू बी मटेरियल एज पर द अबव नॉर्म्स, इट मे बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिसीव। अगर मटेरियल नहीं है तो जब रिसीव हुआ है तब वो ऑडिटर नीड नॉट क्लैरिफाई द रिपोर्ट इन दैट सिचुएशन। रेवेन्यू की सर्टेनिटी, बैंक रिकॉग्नाइज इनकम सच एज इंटरेस्ट, fees and commission on accrual basis, that is as it is earned. It is an essential condition for accrual of income that it should not be unreasonable to expect its ultimate collection. In modern day banking, the entries for interest income on advances are automatically generated through a batch process in the CVS system. Revenue uncertainty. In the view of the significant uncertainty regarding ultimate collection of income arising in respect of non-performing asset, the guidelines require that banks should not recognize income on a non-perform until it is actually realized. Obviously बात है, non-performing asset को हम accrual basis पे नहीं करते हैं, जब वो हमें मिलती है, रिसीव होती है, तभी हम उसको करते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था। अब now when a credit facility is classified as non-performing for the first time, interest accrued and credited to the income account, the consequent which has not been realized, गवर्नमेंट गारंटेड अकाउंट विल विच हैड नॉट बीन रिलाइज शुड बी रिवर्स्ड या फिर प्रोवाइड, ठीक है। नाउ एडवांस अगेंस्ट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, NSCs, IVBs and may be taken to income account on the due date provided adequate margin is available in the account, adequate margin available at due date पे। बिल परचेज में बिल परचेज के केस में आउटस्टैंडिंग एट द क्लोज of the year, the discount received thereon should be properly apportioned between the 2 years. Now, the unexpired discount rebate on bills discounted, that is where part of the receipt comprising discount charges on bill purchase related to the period beyond the year end, should be recorded as other liabilities, interest component. फीस और कमीशन जो अर्न हुई है रीनेगोशिएशन या रीशेड्यूलिंग के बेसिस पे, उसको हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे ओवर द टाइम ऑफ पीरियड कवर्ड बाय द रीनेगोशिएटेड रीशेड्यूल एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। टेस्ट टैग करो इंटरेस्ट अर्न बाय द बैंक्स फॉर द सैंपल सेलेक्टेड, टेस्ट टैग द फीस कमीशन अर्न बाय द बैंक्स मेड फॉर कमीशन ऑन बिल्स फॉर कलेक्शन, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ इनकम। अगर कोई भी एडवांस जो है इंक्लूडिंग बिल परचेज बिकम हो जाता है एनपी एट द क्लोज ऑफ एनी ईयर, तो एंटायर इंटरेस्ट को अक्रू एंड क्रेडिट करेंगे इनकम अकाउंट से इन द पास्ट पीरियड, शुड बी रिवर्स हो जाना चाहिए। और एनपीए के इसमें फीस कमीशन दैट हैव अक्रूड सीज टू अक्रू इन द करंट पीरियड शुड बी रिवर्स फर्दर इन द केस ऑफ बैंक्स हैव रॉन्गली रिकॉग्नाइज इनकम इन द पास्ट ईयर्स। तो पहला तो एनपीए सॉरी, चार चीज़ों को रिवर्स करने का दे रखा है। कोई भी बिल परचेज डिस्काउंट एनपी हो जाता तो एनपीए फीस कमीशन सिमिलर इनकम, या फिर कोई रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम है वो, लार्ज डेबिट्स जो है इंटरेस्ट इनकम में वो अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुआ है। On leased asset, the component of finance income AS19 leases on the leased asset which was accrued and credited before the asset became non-performing and remaining unrealized should be reversed. On leased asset reversed हो जानी चाहिए। या फिर टेक आउट लोन एक मेथड है ऑफ फाइनेंसिंग वेयर बाय लोन दैट इज प्रोक्योर्ड लेटर इज टू यूज टू रिप्लेस द इनिशियल लोन। भाई मतलब टेक आउट लोन का, टेक आउट फाइनेंस का क्या मतलब हुआ, जैसे हमारा कोई लोन है, ठीक है,
हम उसको पे नहीं कर पा रहे, हमने एक और नया लोन लेके उस लोन को पे कर दिया और एक नया लोन फिर हो गया, तो रिन्यू हो गई ना उसकी डेट। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज लोन लिया 1 मई को, ठीक है, उसकी ड्यू डेट थी 1 जुलाई, ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ हाइपोथेटिकल। 1 मई से 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई को मैं उस लोन का पेमेंट नहीं कर पाई, तो मैंने एक और नया लोन ले लिया 1 जुलाई को और 1 मई वाले का पेमेंट कर दिया, तो वापस रिन्यू हो गया, एनपीए होने से बच गया, तो ऐसे वाले को हम जो है क्लासिफाई करेंगे एज एनपीए, ठीक है। सो अ टेकर लोन इज अ मेथड ऑफ फाइनेंस वेयर लोन दैट इज procured later is used to replace the initial loan. A takeout loan or takeout fund is long term financing. The lender promises to provide a particular category. Takeout loans are common time property development. Takeout finance based on record of recovery. The account is classified as lending. It not recognize income unless realized from the borrower, or if the arrangement so provides. ऑब्जेक्टिव क्या होता है टेकआउट फाइनेंस का? एक्सपांड करने के लिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय फैसिलिटेटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ न्यू एंटिटीज। एक्सपांड करना सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय फैसिलिटेटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ न्यू फैसिलिटी एंटिटीज, या एड्रेस करना सेक्टरल ग्रुप एंड एक्सपोजर इशूज, एसेट लायबिलिटी मिसमैच कंसर्न, या बूस्ट करना अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्गर टेनर डेट फॉर प्रोजेक्ट्स। Memorandum account earning NPA bank should reverse the interest already charged and not collected. तो यहाँ हमारा जो है बैंक ऑडिट का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कौन सा टॉपिक जो है चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ। आई विल श्योरली मेक अ रिविजन वीडियो एंड ऑन दैट टॉपिक, या फिर आप मेरे साथ याद करना चाहते हो कोई टॉपिक तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो भी किसी सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे था, यू कैन गो एंड आस्क दैट पर्सन। अगर आप जो भी रिवीजन वीडियो का मुझे बोलते हैं मैं उस पर श्योरली वीडियो बनाती हूँ। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द पार्ट्स एंड वॉचिंग टिल द एंड।